concept of limiting and excess reagent में कोई problem आई? No. No, ma'am. No, ma'am. Okay, fine. भाई मैंने मोलारिटी पढ़ाई नहीं है तो तुम मुझे क्यों वैसे क्वेश्चंस भेज रहे हो अभी? जो चीज नहीं कराई गई है वो कैसे कर सकते हैं? डू दिस क्वेश्चन, ये कर सकते हो तुम? डू दिस क्वेश्चन एवरीवन, ट्राई इट आउट. 1 liter of CO2 is passed over, चलो सब लोग ट्राई करो, is passed over hot coke. Okay, hot coke. Fine. Volume after the reaction becomes 1.4 liters. Okay. What is the composition of the products? What is the composition of the products? चलो try करो सब लोग. What is the composition of the products? You know how to do? Reaction लिखो, solve करो, balance करो, moles में convert करो और solve करो. Try करो. When you are done, tell me that you are done. When you finish doing, tell me you are done. Anyone? किसी का हुआ? Anyone still doing? How many of you are still doing? कोई नहीं कर रहा? Come on, ये चैप्टर तो तुम लोगों ने स्कूल में कर लिया है. देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेट मी टेल यू. पहले तो बताओ तुमने कौन सी रिएक्शन होगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कोक क्या प्रोड्यूस करेंगे? Ma'am, is the answer 0.8 liter? Let us check. We'll check it out. Tell me, what will they produce? What will they produce when you react carbon dioxide with carbon? Carbon monoxide and carbon Yes, dioxide. this will be limited supply of this and it will produce this thing. अब ये क्या है? ये गैसियस है और ये भी गैसियस है. ठीक है, ये सॉलिड होगा. तो हमें इंफॉर्मेशन CO2 और CO की दी गई है, पूछी गई है. तो क्या हम इसमें ग्राहम्स लॉ लगा सकते हैं? एक तरीका तो ये तुम Yes. से करना, बट हमें CO2 का वैल्यू और इसका पूछा गया प्रोडक्ट में सिर्फ यही आ रहा है. सो इज ग्राहम्स लॉ एप्लीकेबल इन दिस केस? कैन आई सॉल्व यूजिंग ग्राहम्स लॉ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो now see, अगर ये 1 लीटर मैंने लिया और टेम्परेचर वॉल्यूम में, टेम्परेचर एंड प्रेशर में कोई चेंज नहीं किया गया है, तो इफ CO2 रिएक्ट्स कंप्लीटली, मतलब फुल रिएक्शन हो, तो कितना CO प्रोड्यूस होगा? हाउ मच CO विल बी प्रोड्यूस्ड? For every 1 liter of carbon dioxide, how much CO will be produced? 2 liters. 2 liters. 2 liters. Can you follow everyone? See, Yes. you will say volume of CO2 divided by its coefficient is equal to volume of CO divided by its coefficient, that is 2. तो कितना produce होना चाहिए? 2 liters. But are they saying it is produced 2 liters? No, ma'am. No, नहीं ma'am. प्रोड्यूस हो रहा ना. इसका मतलब है रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही है. देयर इज पार्शियल रिएक्शन. डिड यू गेट द क्वेश्चन? इसलिए मैंने बोला था क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा. कैन यू गेट इट? पूरा रिएक्शन नहीं Yes. हो रहा है, आधा रिएक्शन हो रहा है. तो आधा रिएक्शन मतलब सपोजिंग अगर मैं बोलूं कि x लीटर्स ऑफ CO2 रिएक्ट, तो कितना लेफ्ट रह जाएगा? 1 लीटर में से x लीटर्स रिएक्ट करते हैं तो कितना बचा रह जाएगा? 1 minus 6. Okay, and how much CO will be formed? How much CO will be formed? 1.4 liters. It will be 2x. 2x. Do you agree with this? Do you agree with this? Yes, ma'am. तो जब ये पार्शियल रिएक्शन हुआ तो उस टाइम पे वॉल्यूम कौन देगा? Who will produce volume? There will be volume of CO2 and volume of CO, क्योंकि दोनों ही प्रेजेंट है.
पहले हम लोग बोलते थे इट वाज ओनली 2 लीटर्स, क्यों? क्योंकि ये जीरो हो जाता था, या इनिशियल वॉल्यूम देखोगे तो इट इज ओनली 1 liter because this is zero. But when this is also present, this is also present, both will contribute towards volume or not? Both are Yes, going to ma'am. contribute. Yes, So how ma'am. will we find the value of x? Now tell me. So total कितना है उन्होंने दिया है? 1.4 liters है. What is the volume of CO2 when it is done partially, and this is how much? 2x. Now can we solve for x? Can we solve for x? Yes. Yes, x ma'am. की वैल्यू कितनी आ गई? 0.4. 0.4. So tell me how much volume of CO2 will be produced? कितना 0.8 liter. 4x, that is 0.4 into this, कितना? 0.8 liters. ठीक है. And tell me how much amount of CO2 will be left behind after the reaction? 0.6 liter. 0.6. ठीक है. तो अगर उन्होंने पूछा composition of products, तो you can say product में तो यही है, but if they tell you composition of all the substances left after the reaction, तो क्या हो जाएगा? 0.8 liters of CO and 0.6 liters of CO2. Can you follow now? What will be left after the reaction? Both reactant and the product will be left after the reaction. Please explain it again. Yes. See, if you take 1 liter of CO2, you should get 2 liters of CO. But Yes, you're ma'am. not getting 2 liters. That means reaction is not completely. It is at the half stage. It is at the partial stage. So I assume that the reaction is at some X stage. That means X moles of CO2 have reacted. So how many moles of CO will be formed? 2x. Did you follow this thing? Did you follow this thing? If x moles Yes, of ma'am. CO2 is reacting at an instant, 2x of CO will be formed. Now that means 1.4 liters represents total volume that is contributing from CO2 and CO both. Yes, ma'am. So that means 1.4 liter is due to 1 minus x of CO2, and volume of CO is 2x. So on solving, will you get the value of x? Yes, ma'am. If you get the value of x, so can you tell me after the reaction is done, at that particular instant, what is the volume of carbon monoxide Yes, ma'am. and what is the amount of carbon dioxide left? Can you follow Yes, now? ma'am. Yes, ma'am. अब समझ में आ गया है? ठीक है, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन तुमने किया नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम आया. ठीक है, इज इट फाइन? अब ये प्लीज ये क्वेश्चंस तो मत पूछो. अब 5.6 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स? Tell me 5.6 liters of oxygen is equivalent to how many moles? एक मोल में 22.4 लीटर होता है, तो 5.6 में कितना हो जाएगा? अब बताओ, इसमें मैं क्या तुम्हें एक्सप्लेन करूं? इसमें तुम्हारे ऑप्शंस. मैम ये पता है लेकिन ऑप्शन नहीं. हाँ, मैम तो वो ऑप्शन में गलत नहीं होगा है. बेटा. आई डोंट नो क्या प्रिंटिंग एरर है उसमें, है ना? कैन यू सी योरसेल्फ? ओके, प्रिंटिंग एरर हो गई है उसमें. ओके, ठीक है. फिर ऐसे ही दिया हुआ है एक चीज और, 1 liter of a certain gas. Now see, it is also a gas. It is weighing 1.16 grams. Okay, the gas can be, कौन सी हो सकती है gas? Predict the gas. So tell me how will you do it at STP? So you know what is the weight of 1 mole? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मोल पे जाओ. 1 mole of any gas का वेट कितना होता है? 1 मोल ऑफ एनी गैस का वेट कितना होता है? अरे मोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलो. हाउ डू यू फाइंड मोल? Given weight upon molar mass. हाँ, तो 1 मोल अगर लिखा हुआ है तो व्हाट विल बी द वेट इन ग्राम्स? सॉल्व करो उस फॉर्मूले में. Isn't it equal to the molecular weight in grams? AMU और जब वाली क्लास ली थी उसमें बार बार बोला था ये चीज. Didn't I tell you in AMU wali class? Yes, ma'am. Yes. And why do you forget? If you are going to forget and if you are not going to revise, no one is going to help you out. You will always stuck in such simple questions. You need to revise your class notes didn't you attend the seminar? बोला था ना सेमिनार में क्लास में अटेंड करने से पहले नोट्स रिवाइज करके आना है. कितने Yes, लोग आज ma'am. नोट्स रिवाइज करके आए हो? करके आए हो तो तुम ये फटाफट बोल देते ये चीज. और अगर तुमने किया होता, गुड.
मेहुल एंड मुस्कान, इफ यू वुड हैव डन तो तुम्हें ये डाउट ही नहीं आता क्योंकि तुमने वहां पढ़ा ही था। एंड 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना होता है एट एसटीपी? 22.4. बेटा दिख नहीं रहा तुम्हें रिलेशनशिप सामने से? अब बोलो कैसे रिलेशनशिप हो जाएगा? कैसा रिलेशनशिप हो जाएगा? 1 लीटर का वे है 1.16 ग्राम्स, तो अगर हम 22.4 लीटर्स का वेट निकाल लें तो इट विल बी इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस और नॉट? Yes, ma'am. एंड जो तुम्हें ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से देख लेना किसके साथ मैच कर रहा है। किसी को भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो अब तुम कर पाओगे? Yes. ठीक है। अच्छा, एक और अच्छा वाला क्वेश्चन है ये, मतलब सच में लग रहा है अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हारा डाउट आया तो जेन्युइनली आया। ठीक है, ये तो बहुत, जो ये तुमने लास्ट में पूछे तो सिंपल सिंपल थे, मे बी तुम एग्जॉस्ट कर गए थे क्योंकि शायद ये क्वेश्चन नंबर भी 49 एंड 50 है, तो एग्जॉस्ट कर गए थे इसलिए शायद तुम्हारा दिमाग में वो क्लिक नहीं किया। ठीक है, बट ये जो तुमने सीओ वाला क्वेश्चन पूछा है और ये वाला जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, दीज आर क्वालिटी क्वेश्चंस। आई जेन्युइनली एग्री कि इसमें डाउट आना अच्छी बात है। ठीक है, हो सकता है ये आ जाए। So see, there are 2 oxides of sulfur. Okay, now they contain 50% and 60% of oxygen respectively. ठीक है, now you have to find the weights of sulfur. The weights of sulfur that combines with 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा तुम बस क्वेश्चन देख के डर गए हो, बाकी कुछ नहीं है। ओके, तो एक चीज और डेवलप करो अपने अंदर, क्लास में डाउट पूछने से पहले तो तुम क्या किया करो, सॉल्व करा करो। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये नहीं हुआ। समटाइम्स इट हैपेंस, ये समटाइम्स नहीं, मेजॉरिटी टाइम्स इट हैपेंस, योर ब्रेन गेट्स एग्जॉस्टेड, उस टाइम पे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो अच्छे क्वेश्चंस जो तुम कर भी सकते हो थोड़ा सा दिमाग लगा के, तुम्हारे ब्रेन एग्जॉस्टेड होता है तो तुम्हें सिग्नल देता है कि तुमसे नहीं होगा। तो प्लीज ऐसा किया करो, पहले तुमने मार्क कर लिया, हाँ ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। फिर जो नहीं हो रहे हैं, गिव अ ब्रेक, गो आउट, गो इनटू फ्रेश एयर और गिव इट अ ब्रेक, थिंक अबाउट इट ऑन द नेक्स्ट डे। तो जो तुम्हारे पास सेट ऑफ क्वेश्चंस है ना, जो तुमसे नहीं अटेम्प्ट हुए हैं फर्स्ट टाइम, अब उनको आराम से लेके बैठो, एक एक क्वेश्चन को क्या करो, 1 या 2 मिनट दो, एनालाइज दैट क्वेश्चन, रीड दैट क्वेश्चन 1 or 2 or 3 to 5 टाइम्स जितना तुमको लगे, एंड देन एनालाइज द क्लास। मतलब फ्लैशबैक में जाओ और क्लास के बारे में सोचना स्टार्ट करो, क्योंकि ये प्रैक्टिस तुमको डेवलप करनी पड़ेगी। क्यों प्रैक्टिस डेवलप करनी पड़ेगी? बिकॉज without this you cannot work out. IIT always gives you new questions. पिछले 40-45 साल का पेपर उठा लो, कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। स्कूल बोर्ड एग्जाम नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट होता रहेगा, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। यहाँ कभी क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होता। मैं कितना भी करा लूँ, कोई भी टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कुछ भी करा ले, भाई हर बारी हमें एक नया क्वेश्चन मिलेगा। तो हमें नए क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी हैबिट डालनी पड़ेगी। और कैसे डालते हैं हम लोग? ऐसे डालते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जब हमारे पास जो डाउट्स हुए तुम्हें खुद से करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। उसका रीजन ये है क्योंकि तुम नहीं कर पाओगे तो हर बारी वहां नया क्वेश्चन मिलेगा, इसका मतलब है तुम्हें दिक्कत आएगी। ओके, फिर तुम डाउट लेकर के वहां घूमोगे और वहां पे देयर विल बी नो वन टू हेल्प यू आउट। सो यू हैव टू स्टैंड स्ट्रांग। तुम्हें क्या करना है, तुमने डाउट पहले लिख लिए, एक बारी बैठे सिटिंग दिया कि चलो आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद ही हम टेबल्स उठेंगे। 50 क्वेश्चन करने के बाद में हम जब टेबल्स उठे तो हमारे पास 5 क्वेश्चन थे जो हमसे नहीं हुए, गुड, इट इज एक्सेप्टेड। ओके, फिर हमने क्या किया, उन 5 जो भी 5 क्वेश्चंस थे अगले दिन या सुबह हमने किए थे तो शाम को हम बैठे एक एक क्वेश्चन को 5-5 बारी पढ़ा, 3 बारी पढ़ा, 2 बारी पढ़ा, एंड देन स्टार्ट एनालाइजिंग कि हमने पढ़ा क्या था चैप्टर में। तो हमने क्या पढ़ा था, वी स्टडीड अबाउट, पहली चीज क्या पढ़ी थी, मोल कॉन्सेप्ट। तो अब देख के बताओ क्या ये मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? क्या ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन है इसमें मोल कॉन्सेप्ट कहीं यूज करने की जरूरत है? वहां हमने कन्वर्जन्स पढ़े थे, ग्राम टू मोल्स, पार्टिकल्स टू मोल्स, क्या यहाँ पे वो यूज करने की जरूरत है? इज इट समवॉट ऑफ दैट टाइप? अरे बाबा बोलो बेटा, बिना बोले क्या मेरे को समझ में आ रहा है कि यू आर देयर इन द क्लास और नॉट? Is it of that type? Do you feel? No, ma'am.
No. No, ma'am. Then you did about percentage, and then you did about chemistry calculation और stoichiometry. So इन 3 टॉपिक्स जो तुमने अभी तक पढ़े हैं, ये किससे रिलेटेड टॉप क्वेश्चन हो सकता है? Percentage. अब परसेंटेज की क्लास को रिवाइज करो. हमने क्या क्या पढ़ा था? परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड पढ़ा था, एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ा था. इसमें से भी बताओ क्या क्या किसमें से होगा? Percentage element. Yes. देखो तुम खुद से सॉल्व करने लग गए. अब उन्होंने बोला है कि परसेंटेज 50%. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट? 50% of the this will be what? Number of atoms of sulfur? Atoms. What is the atomic weight of sulfur? Ma'am, 32. 32 divided by what? Molecular weight of compound 1. कैसे ऐसे लिखेंगे कि नहीं? बोलो ऐसे लिखेंगे या नहीं? Yes, ma'am. Okay. Now similarly 60%. Yes. Ma'am, 50% oxygen का है. Number of oxygen atoms. There are 2 sulfides. There are 2 oxides of sulfur. which हम the contain- percentage is for oxygen. Okay, तो 50% सल्फर भी तो हो जाएगा फॉर द फर्स्ट एग्जाम्पल. Yes, ma'am. ठीक है. और अगर ऑक्सीजन है तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसे 16 कर देते. अब तो सही है. इज इट फाइन नाउ? Yes, ma'am. नाउ टेल मी ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इनटू 16 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड 2. कैन वी राइट लाइक दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. तो अब देखो बाकी चीजें हम भूल गए. अब इन्हीं 2 फॉर्मूला, देखो हम फॉर्मूलाज पे भी आ गए और हम इन्हीं 2 चीजों पे अपने आप को फुल फोकस में सोचने पर वो करेंगे. ठीक है. अब देखो मेकिंग ऑफ द फॉर्मूला पे जाओ. मेकिंग ऑफ द फॉर्मूला. तो यू नो सल्फर की वैलेंसी यहाँ पे वेरिएबल हो रही है या कांस्टेंट हो रही है? अगर कांस्टेंट होती variable. तो एक ही फॉर्मूला बनता ना. यहाँ 2 अलग अलग शो कर रही है. तो सपोजिंग एक में वो x शो कर रही है, बट ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? अरे कम ऑन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? Ma'am, 2. 2. तो इसका फॉर्मूला बनाओगे कंपाउंड 1 का, तो विल इट बी लाइक S2OX? विल इट बी समथिंग Yes, लाइक ma'am. X2OX और नॉट? Yes, ma'am. What will be the molecular weight of first compound? Can I write it will be something like this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And similarly, what will be the formula of the second compound? Will it be something like this? Check it out. Am I doing correctly? Yes. The molecular weight of the second compound is coming like this. So this is what 50 is equal to 16 into how many atoms of oxygen you have? Why? 16x upon 32 या फिर ऐसे लिख लो 64 plus 16x. This becomes your first equation, and similarly 60 is equal to 16y upon 64 plus 16 64 plus 16y. Do you follow this thing? Yes. Yes, Yes. ma'am. ठीक है. Now can we have 2 equations and 2 unknown? Can we solve for x and y? Yes, Yes, ma'am. ma'am. x and y की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. Yes, ma'am. सपोजिंग क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन बहुत बार किया हुआ है, तो तुम चेक करना है x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू 3 आएगी. कैन यू फॉलो दिस थिंग? सॉल्व करके देखना. तुम ये साइमल्टेनियस इक्वेशन तो सॉल्व ही कर लोगे. Yes, ma'am. Yes. ठीक है. तो हमारा सपोजिंग कंपाउंड है SO2 एंड SO3. अब उन्होंने पूछा क्या है ये देखते हैं. तो उन्होंने बोला है कि what weights of sulfur will combine with 1 gram of oxygen. So see in this case, for 32 grams of oxygen, how much sulfur is needed? 32 gram sulfur for first Yes, ma'am. formula. Yes, तो ma'am. 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना सल्फर चाहिए होगा? 1 gram. 1 gram sulfur. This is for molecular formula 1. ठीक है. Similarly, move to the next one. So over there for how much? 48 grams of oxygen, we require 32 grams of sulfur.
देखो SO3 में कितना ऑक्सीजन है, 48 ग्राम्स है। डू यू फॉलो? Yes, ma'am. तो Yes. 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 32 डिवाइडेड बाय 48 ग्राम्स चाहिए होगा। Yes. Yes. अब इन्हीं दोनों S1 और S2 का रेशियो ही पूछा है, तो नाउ कैन वी फाइंड द रेशियो ऑफ S1 एंड S2? Yes, It will be ma'am. 1 upon 32 divided by 48, or you can say it will be 3 by 2. ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है? Getting it? So it will be answer option number D. ओके तो देखो ये क्वेश्चन तुम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि तुम शायद ये पकड़ ही नहीं पाए थे किस टॉपिक से रिलेटेड है। सी दैट वाज द प्रॉब्लम यू फेस्ड, या फिर क्या Yes, प्रॉब्लम ma'am. आई? Ma'am, this only. यस तो देखो अगर तुम ये पकड़ लेते कौन से टॉपिक से रिलेटेड है तो तुम यहाँ पे पहुंच जाते, यहाँ पे पहुंच जाते तो तुम सोच फिर ये फॉर्मूलाज डिराइव करने की कोशिश करते, फिर तुम्हें दिखता अरे ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशन है जो मैंने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, चलो इनकी वैल्यूज निकाल देते, इनकी वैल्यूज निकाल देते तो फॉर्मूला डिराइव हो जाता, फॉर्मूला डिराइव हो जाता तो क्या हो जाता। तो ये देखो ये टेक्निक हेल्प करती है कि नहीं? Yes, ma'am. because now you will not get the same question which you are doing in book। पहले के टाइम पे क्या होता था, वही क्वेश्चन आते थे, लगभग वही लैंग्वेज होती थी, बस क्या होता था 4 न्यूटन की जगह 10 न्यूटन कर देते थे, ज्यादा यही डिफिकल्टी लेवल होती थी। बट अब हर बारी क्वेश्चन भी डिफरेंट आएंगे, तो तुम्हें ये टेक्निक खुद से डेवलप करनी पड़ेगी। डिड यू फॉलो? Yes, ma'am. I follow. ठीक है, अभी सबको करना है ये चीज, ठीक है, सिर्फ फॉलो नहीं करना है। अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में जब भी क्वेश्चन सॉल्विंग करने बैठोगे, जब भी स्टडी करने बैठोगे, अपने को ऐसे एनालाइज करना है। अब देखो अगर सपोजिंग 5 डाउट्स थे, 5 टाइम्स तुमने इसको एनालाइज किया, तो देखो 5 टाइम्स ये फॉर्मूला रिवाइज हुए इन अ डे। सी Yes. 5 times your chapter is revised in a day, Yes, ma'am. and if you do it in alternate days, see you will be thorough with the chapter or not? Mentally you're doing it, Yes, ma'am. will you become thorough with the chapter also or not? तो ये चीज मेंटल एक्सरसाइज तुम्हें हमेशा करनी है। गेटिंग इट? यस Yes, मैम। ma'am. मैम इस क्वेश्चन में एक डाउट है। हाँ बोलो। इन नेक्स्ट पेज पे मैम x की वैल्यू 2 आ रही है, तो यहाँ पे SO2 बनेगा, लेकिन यहाँ लिखा है H2OX। कहाँ लिखा है? हाँ तो x मैम की यहाँ वैल्यू 4 आ रही होगी ना, 4 and 6। यस मैम। ठीक है, तुम वो सॉल्व करके देख लेना। मैंने ये क्वेश्चन, अरे तुम मतलब ऐसे चेक कर लो ना, मैंने ऐसे देखा 32 + 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन 50% बन रहा है या नहीं बन रहा है, खुद चेक कर लो। यस मैम। एंड 32 and 48 ग्राम्स, सो चेक इट, ये टोटल वेट कितना आ रहा है। मैंने तो ऐसे सॉल्व किया था, तो 48 आउट ऑफ 80 into 100, देखो 60% बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैंने Yes. मेंटली ऐसे डिवाइड कर लिया था। देखो सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं, हमें पता है ना SO2 and SO3 है। मुझे तो ये कैलकुलेशन का दिमाग में ही नहीं आया था, ये तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने ये कैलकुलेशन करी, लेकिन जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे दिमाग में, जो स्मार्ट किड होगा तो उसके दिमाग में ये आएगा सल्फर के कितने ऑक्साइड्स पढ़े हैं हमने, SO2 and SO3, तो मतलब ईदर इज हैज टू बी SO2 और वन हैज टू बी SO3। इसका 50% हो जाएगा और इसका 60। ये सब मैंने मेंटली कर लिया, फिर मैंने तुम्हें बताना स्टार्ट किया, है कि नहीं? यस मैम। Now is it you are following the process? यस मैम। ठीक है, so let's move ahead. So now see there are certain questions जिसमें see every time when you are going to solve a question, it is not necessarily कि तुम्हें वो question में pure reactant दिया जाए, there may be sometimes the reactant may be impure। जो क्वेश्चन तुम्हें दिया जाए उसमें इम्प्योरिटी हो, जैसे ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन तुमने किया था, नाइट्रोजन वाला, सो समटाइम्स इम्प्योरिटी इज गिवन टू यू। तो इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है? इम्प्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्टोन, पेबल्स या सैंड को इम्प्योरिटी बोलते हैं। इम्प्योरिटी मीन्स एनी काइंड ऑफ इनर्ट सब्सटेंस, एनी काइंड ऑफ इनर्ट सब्सटेंस, ओके, which does not participate in the reaction is called as impurity, which does not participate in the reaction, participate in the reaction। ठीक है, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है? परसेंटेज प्योरिटी ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। परसेंटेज प्योरिटी बेसिकली मींस कि प्योर का वेट अपॉन इम्प्योर का वेट
इंटू 100। प्योर का वेट कहाँ से निकालोगे? ऑब्वियस सी बात है, इम्प्योर का वेट आएगा, प्योर का वेट आएगा कैलकुलेशन कर करके। और ये इम्प्योर का वेट क्या होता है? क्वेश्चन में गिवन होता है। ओके, तो ये हो जाता है कैलकुलेटेड अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100 इज परसेंटेज impurity. Like if I ask you a question, find the volume of CO2 produced, find the volume of CO2 produced when 80% pure, 100 kg of calcium carbonate or 100 kg of limestone it decomposes at STP. ट्राई करो, पहले तुम 80% भूल जाओ at STP, ट्राई करो। Anyone? Yes. हम 4/5 into 22.4. Okay, let us check. So see, what will happen, अगर ये 80% प्योर बोल रहे हैं तो 80% प्योर का मतलब क्या हो गया? 100 kg में से प्योर कितना है? 80 kg जो होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, 20% क्या होंगी? Impurity. यस, 20 kg इम्प्योरिटीज होंगी। तो जब तुम मोल कॉन्सेप्ट लगाओगे तो किसके ऊपर लगाओगे? 80 kg के ऊपर या 100 kg के ऊपर? 80 kg. 80 kg के ऊपर, ठीक है। इम्प्योरिटी में बस यही कैलकुलेशन याद रखनी पड़ती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस CaO प्लस CO2। तो नाउ यू हैव ऑलरेडी नो, अगर तुमने 1 मोल लिया तो ये CO2 कितना प्रोड्यूस होगा? How much CO2 will be produced at 1 mole. 1 mole. अब कितने मोल्स दिए हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? और यू कैन से मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2। देखो ये कैटेगरी 1 का ही क्वेश्चन है, बट इसका फॉर्मेट चेंज हो गया है, एक स्टेप बढ़ गया है। वेट ऑफ प्योर ही लेना है, ठीक है। तो मोल्स हमेशा प्योर के ही होते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट सिर्फ प्योर वाली चीज करती है, इम्प्योरिटी सिर्फ वेट बढ़ाने का काम करती है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ प्योर? इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमारा 80 kg था, 80 into 10 raised to the power 3 divided by 100 moles होगा कि नहीं? Yes. तो how many moles Yes, of ma'am. CO2 is produced? 800. Produced, it is 800 moles. So, but I am asking volume of CO2, तो moles को volume में कैसे कन्वर्ट करते हैं? Into 22.4 liters. 2.4 liters at STP. Did you get it? Yes, ma'am. Did you get it? अगर क्वेश्चन में Yes, ma'am. तुम्हारे को कभी भी परसेंटेज प्योरिटी लिखा हुआ आ जाए तो तुम्हें क्या करना है? उसमें से, उस वेट में से देखना है कि कितना प्योर है, क्योंकि प्योर ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इम्प्योरिटी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ओके, प्योर सब्सटेंस gets converted to
product, not the impurities. Ma'am, how did we get like the number of moles from Arey the beta, given quantity? why can't you get? See, solve this equation. Come on, first class करानी पड़ेगी. मोल्स कैसे निकालते हो? ग्राम मास 80 kg हो रहा था, kg को ग्राम में कन्वर्ट करो, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट करो. बोलो, यही था Okay, ना? ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ठीक है. Following it now. Did you follow it? Yes, ma'am. ठीक है. Now let us do another way. Now supposing if I say 100 grams of calcium carbonate on heating produces 5.6 liters of CO2 at STP. ठीक है, इसका इतना प्रोड्यूस हुआ at STP. So what is the percentage purity of calcium carbonate? ट्राई करो. मैम 25%. कैसे निकाला अभी हम लोगों ने वो चेक करते हैं. ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वो लोग देखेंगे. देखो कैसे किया, ये किया, ये किया. अब देखो अगर हम लोग 1 मोल प्योर लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एट STP? 22.4 liters. Yes, 22.4 liters. 1 मोल मिलता, दैट इज 2.4 लीटर मिल रहा होगा. इसका मतलब है ये 5.6 लीटर्स बोल रहे हैं 100 ग्राम लेने पर मिल रहा है. That means, is it pure calcium carbonate or impure calcium carbonate? Is it pure? 100 gram is pure or impure? Ma'am, impure. Impure है because the volume है वो कम मिल रही है. इसका मतलब प्योर में जो हमने सैंपल लिया है उसमें वेट कम है ना प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का. Do you agree? Yes. ठीक है, तो अब कितना कम है वही हम लोग निकालना चाहते हैं. ये 100 ग्राम दो तरीके से है, प्योर का वेट और इम्प्योरिटी का वेट. ठीक है, तो अब प्योर कितना है वो कैसे निकालें? तो डोंट वी नो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट. टेल मी हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 वी हैव? Ma'am, 0.25 moles. 0.25. तो व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ प्योर CO2? क्योंकि जो कैलकुलेशन से आता है वो किसका अमाउंट होता है? Impure. क्वेश्चन वाला इम्प्योर होता है, जो कैलकुलेशन से आता है वो किसका होता है? देखो इधर फॉर्मूले में लिखा था, जो कैलकुलेशन से आएगा वो कौन सा वेट होता है? प्योर का वेट होता है. जो क्वेश्चन में दिया होता है वो किसका वेट होता है? इम्प्योर का वेट होता है. देखो यहाँ पे 80% ऑफ 100 kg दिया था, तो ये प्योर का वेट दिया था 100 kg या इम्प्योर का? Impure. यस, तो क्वेश्चन में कौन सा वेट दिया होता है, प्योर का या इम्प्योर का? Impure. इम्प्योर का. तो प्योर का वेट हम निकालते हैं. यहाँ पर भी देखो तुमने 80% ऑफ 100 करके निकाला था, और यहाँ पे भी जो वेट आ रहा है आफ्टर कैलकुलेशन, दैट विल बी हुज वेट? दैट विल बी हुज वेट? Pure. प्योर. प्योर का वेट. सो व्हाट इज द वेट ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट? सॉल्व इट एंड टेल मी. What is the weight of pure calcium carbonate in the sample? 25 grams. 0.25 मोल होंगे. 0.25 मोल को मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 25 grams. 25 ग्राम. So what will be the percentage purity? Calculated weight कितना आया? 25. Given weight it is 100 grams. So what is the percentage purity? 25%. Yes. Did you follow now? Yes. Did you people follow now? Yes, ma'am. गुड. ओके, ऐसे ही एक और एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज पूछा जाता है एग्जाम में, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज यील्ड. दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज यील्ड. परसेंटेज यील्ड कुछ नहीं है, एफिशिएंसी यील्ड. जैसे तुम्हें क्या होता है, तुमने जब स्कूटी ली होगी तो उसमें वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारी स्कूटी का एवरेज है 40 किलोमीटर पर लीटर ऑफ फ्यूल. बट क्या तुम्हें हमेशा 40 मिलता है? क्या हमेशा 40 मिलता है? No, ma'am. No, ma'am. नहीं, No, उससे ma'am. कम ही मिलता है ना. एफिशिएंसी कम हो जाती है. ठीक है, तो वो लोग तब कैलकुलेशन करके बताते हैं जब क्या हो, जब एकदम कंडीशंस परफेक्ट हो. ठीक है, 100% एफिशिएंसी पे तुम्हें
40 किलोमीटर्स मिलेगा, बट इफ द कंडीशंस आर नॉट, कुछ भी रीजंस हो जाए तो हमें 100% नहीं भी मिल सकता है, ऐसा भी चांसेस है। तो परसेंटेज यील्ड होती है, तो यील्ड क्या होती है, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी है बेसिकली, यील्ड का मतलब है एफिशिएंसी। सो ये क्या हो जाती है, फिर से वही कैलकुलेटेड, ठीक है, अपॉन, मतलब जो भी क्वेश्चन में, मतलब हम तो सोच रहे थे कि कैलकुलेशन ये बोल रहा था कि ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हमें कुछ कम मिला, एक्चुअल अपॉन कैलकुलेटेड इनटू 100। अब एक्चुअल फिर से कहाँ दिया होगा, क्वेश्चन में, और कैलकुलेटेड कहाँ होगा, कैलकुलेटेड कहाँ होगा, हम कैलकुलेट करेंगे। ओके जैसे कुछ शायद नहीं समझ में आ रहा तो मैं तुम्हें क्वेश्चन बताती हूँ। सपोजिंग आई टेक 100 grams ऑफ लाइमस्टोन, ओके, and it produces 11.2 liters of CO2 at STP. What is the percentage yield of the reaction? Yield of the reaction. So tell me, ये बार बार मैं इसीलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि एक ही तुम्हें ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो 100 grams that is 1 mole of CaCO3 कितना CO2 प्रोड्यूस करना चाहिए? 22.4. 22.4 लीटर्स। मतलब ये कब प्रोड्यूस करनी चाहिए, जब उसकी एफिशिएंसी क्या हो, 100%. 100%। बट हमें कम मिल रही है ना, हमें जो एक्सपेक्टेड Yes, वैल्यू है उससे ma'am. कम मिल रही है, तो व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड, इट विल बी हाउ मच, गिवन अपॉन कैलकुलेटेड इनटू 100। जो हम कैलकुलेशन में सॉल्व करते हैं वो कब के लिए सॉल्व करते हैं, जब हमारी यील्ड 100% हो, मतलब एफिशिएंसी 100% है। तो ये कितना आ जाएगा, 50%. डिड यू फॉलो, डिड यू फॉलो इट? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो इस टाइप के दो वेरिएशंस और क्रिएट किए जाते हैं तुम्हारे उसी क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, नाउ कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। लास्ट पार्ट डील्स विद concentration terms, last part is dealing with concentration terms. now यहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन में नहीं स्पेसिफाई किया गया है तो we will talk about solutions. You know what is a solution, what is a solution, Yes, ma'am. what is it, define, any kind of mixture, मिक्सचर जिसमें जो हमारा जो मिक्सचर जो कि मिक्सचर बनने के बाद लिक्विड स्टेट में रहे, लिक्विड स्टेट में कन्वर्टेड रहे, तो उसे हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं जनरली? Yes, ma'am. ठीक है, जो ऐसा मिक्सचर जो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए उसे हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। अब मिक्सचर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, मिक्सचर तो कैसा भी बना सकते हैं, बट अगर उसमें 2 कंपोनेंट्स हुए तो वी विल कॉल इट एज अ बाइनरी सॉल्यूशन। और ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे बाइनरी सॉल्यूशन से ही रिलेटेड होंगे, बट इफ देयर आर 3 कंपोनेंट्स देन यू कैन आल्सो कॉल इट एज tertiary solution. If there are 4 components, we can call it as quaternary. Did you follow this? Did you follow this? Did you follow this? Yes, Tell ma'am. me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. In general, ज़्यादातर in our questions deal with which type of solutions? Binary. Binary. They deal with binary solution जिसके 2 components होंगे। अब दोनों components को differentiate करने के लिए उनका नाम देना पड़ेगा, तो हमने उनके नाम दे दिए। solute, what is solute, what is solute? Less in quantity. yes, जिसका amount कम होता है उसको हम लोग solute बोलते हैं, और जिसका amount ज्यादा होता है उसको हम लोग solvent बोलते हैं। Did you follow this thing? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, अब सॉल्यूशंस कितनी तरीके की बना सकते हैं, जैसे तुमने देखा होगा घर में कभी हम 2 ढक्कन रूह अफ़ज़ा डाल देते हैं, कभी 1 ढक्कन डाल रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन कितना सॉल्यूट डाला है तुमने हमें अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस मिल जा सकते हैं। किसी को कम मीठा पसंद है, किसी को ज्यादा मीठा पसंद है, ऐसे ऐसे कर करके काफी सारे टाइप के सॉल्यूशंस अपने को मिल सकते हैं।
ठीक है। सो अब उसको कैसे वेरीफाई करें कि किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, क्या नहीं है। सो इसको प्रॉपरली करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन करते हैं। वी अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग कंसंट्रेशन terms. Okay, so what does concentration term tell you? It basically denotes the terms, just basically denotes the amount of solute in the solution. Amount of solute in the solution. कम है, ज्यादा है, उसको डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अब कंसंट्रेशन टर्म्स जो होती हैं उनको भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब जिनको केमिस्ट्री नहीं आती है, लेमैन होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे परसेंटेज या रेशियोज को यूज करते हैं टू डिफाइन द कंसंट्रेशन टर्म्स, क्योंकि उनको केमिस्ट्री नहीं आती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, जिनको केमिस्ट्री आती है, वो केमिस्ट्री में अमाउंट किसमें ज्यादातर फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, मोल्स में। मोल्स में। तो वो लोग क्या करते हैं, मोल्स को यूज करते हैं टू डिफाइन द कंसंट्रेशन टर्म्स। तो जैसे जिनको नहीं आता है केमिस्ट्री के बारे में, एक लेमैन है, तो दे कैन यूज सम कंसंट्रेशन टर्म्स लाइक वेट बाय वेट परसेंट, मतलब वो परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, या फिर पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं पीपीएम, पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, पीपीएम, पीपीबी। यहाँ पे देखो मोल्स बिल्कुल यूज नहीं हो रहे हैं। दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन क्या है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोल्स को यूज किया जाएगा, जैसे कि मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलारिटी हो गया। मोलारिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। ओके, देन देयर इज मोलालिटी, मोलालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। Then there is normality, it is represented by capital N. Okay, these are the two ways of representing concentration terms. तो हम लोग पहले सिंपल वाला करते हैं, फिर हम लोग मोल्स वाले पे जाते हैं। सो सी, पहले सिंपल वाले पे आते हैं। फाइन, तो सिंपल वाले में सबसे पहले लिखते हैं परसेंटेज बाय मास। लेट अस स्टार्ट विथ परसेंट। हाँ, पहले एक चीज बताओ, जो हमारे सॉल्यूट होते हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं, सॉल्यूट जो होते हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं, किस स्टेट्स ऑफ मैटर में हो सकते सॉलिड, हैं, लिक्विड। इधर दे कैन बी, लिक्विड और यस, गैस। और दे कैन बी फ्लूइड। सॉलिड का जो क्वांटिटी होता है वो किस टर्म्स में इजी होता है मेजर करना, किस टर्म्स में इजी होता है मेजर करना, मास के टर्म्स में, जैसे कि वेट, मतलब सब्जी लेने जाते हो तो कैसे टर्म्स में मेजर करते हो, शुगर लेते हो तो कैसे मेजर करते हो, केजी ग्राम। वगैरह में, यस, केजी, ग्राम, मतलब मास के टर्म्स में, केजी, ग्राम्स और समथिंग। और जब वाटर बॉटल लेते हो या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेते हो, वे फ्लूइड लेते हो, तो उसको किस टर्म्स में मेजर किया जाता है, वॉल्यूम के टर्म्स में, वॉल्यूम, लीटर्स, ml एंड सो ऑन। डू यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. यस ठीक है। मैम। तो अब सॉलिड का मास मेजर करना इजी होता है, फ्लूइड का वॉल्यूम मेजर करना इजी, मतलब करने को तो हम ये भी कर सकते हैं, मतलब यू कैन मेजर इट इन मास आल्सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी, और उसको मास को हम वॉल्यूम में भी मेजर कर सकते हैं, बट इट इज अ टीडियस थिंग। हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं सॉलिड का मास यूज करना और वॉल्यूम का, फ्लूइड का वॉल्यूम मेजर करना। जैसे 100 ml ऑफ वाटर, जैसे तुमने कुकिंग शोज में भी देखा होगा ना, पुट 1 cup ऑफ वाटर, ऐसे दिखाते हैं कि नहीं, Yes, गेटिंग ma'am. इट? सो वही चीज है यहाँ पर, ठीक है। सो नाउ सी, अगर अब हमें परसेंटेज एक्सप्रेस करना है, परसेंटेज बाय मास, सपोजिंग वी आर मूविंग टूवर्ड्स परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास, ठीक है। और यू कैन कॉल इट एज वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। ओके, इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं वेट डिवाइडेड बाय वेट परसेंट, ऐसे। सो नाउ इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, वेट बाय वेट परसेंटेज मींस वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हो जाता है, ठीक है।
और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, अगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाला तो मास विल बी एडेड और नॉट. Yes, ma'am. Yes, So what ma'am. is the weight of the solution? It will be weight of solute plus weight of solvent. Do you agree? Yes. Yes, ma'am. यस मैम. So अब बताओ ये कब यूज करना ज्यादा बेटर होता है, ये कब यूज करना ज्यादा बेटर होता है, जब हमारा सॉल्यूट भी कैसा हो, जिसका मास मेजर करें, सॉलिड में हो, और जो सॉल्वेंट हो वो भी कैसा हो, सॉलिड में हो. मतलब जो मिक्सचर हो वो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर हो. जैसे लाइमस्टोन का सैंपल हम बोलते थे, ओड्स हो गए, अलॉयज हो गए. अब ओड्स में तुम्हें पता ही है ना, तुमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जो इम्प्योरिटीज होती है वो भी सॉलिड होती हैं, और जो मिनरल होता है वो भी सॉलिड होता है. तो इन सब में क्या होगा, परसेंटेज वेट बाय वेट लिखे तो ज्यादा बेटर होगा ना. Yes. जैसे अभी हमने बोला 80% प्योर लाइमस्टोन है, तो उसमें इम्प्योरिटी भी तो कैसी होंगी, इम्प्योरिटीज भी किस फॉर्म में होंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड. ठीक है. तो जब Solid. सॉलिड का मिक्सचर होता है तब हम वेट बाय वेट एक्सप्रेस करना प्रेफर करते हैं. कैन यू गेट इट? जैसे तुम बोलते हो ना 22 कैरेट गोल्ड मतलब 90% प्योर गोल्ड, बाकी उसमें कॉपर मिक्स्ड है, तो सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर हुआ कि नहीं. Yes. Yes. ठीक है. तो इस टाइप के मिक्सचर्स के लिए हम लोग ये प्रेफर करते हैं. व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस, इट विल बी यूनिटलेस. क्यों? क्योंकि केजी बाय केजी डिवाइड होकर के क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा ना. Yes. Ma'am. ठीक है. ओके, अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस इज, इट इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और यू कैन से V by V %. ये क्या होगा, it will be V by V % means volume of solute upon volume of solution. क्योंकि परसेंटेज लिखा है इसलिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज मतलब परसेंट, सेंट मतलब सेंट स्टैंड्स फॉर विच 100. नंबर, 100. तो इसीलिए हम लोग ये लिखते हैं. ठीक है. एंड इन दिस केस ऑल्सो क्या होता है, जैसे तुम लोग आजकल करते होगे ना, लेमोनेड लेते हो, लेमोनेड का कंसंट्रेट लेते हो, स्क्वैश का कंसंट्रेट लेते हो, उसमें वाटर डालते हो, तो लेवल राइज करता है कि नहीं राइज करता है. Yes, ma'am. So that Yes, will ma'am. means volume of solute plus volume of solvent will give me the volume of solution. Do you agree? Do you Yes. agree with this? Yes, ma'am. ठीक है. So now continue further. Now tell me ये कब use करना preferable होगा? When should we use it? Solid, liquid or When Solute should and we Ma'am, when use it? solute and solvent both are liquid. Yes, so we use it in liquid mixture. जैसे कि vinegar हो गया. What is vinegar? It is a dilute solution of acetic acid in water. In water. ठीक है. फिर तुम्हारी जैसे जो हार्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें भी क्या होता है, अल्कोहल इन वाटर. योर सैनिटाइजर, इट इज अल्कोहल इन वाटर. सैनिटाइजर, it is alcohol in water. The alcohol again liquid, water also again liquid. Did you follow? यस मैम. Yes. Yeah. Now comes another category. And हाँ, इसके units क्या होंगे, units क्या होंगे, Unitless. unitless. Now another way of expression which comes into being is percentage weight by volume. Percentage. अब खुद से decode करो, ये कब use करेंगे, कब use Ma'am, करना when the चाहिए. solute Solute is is solid solid, and the liquid. solvent is Yes, fluid. it is used when your solute is solid, क्योंकि उसका मास मेजर करना इजी होता है, और सॉल्वेंट क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो उस जो पूरा ओवरऑल सॉल्यूशन बनता है वो कैसा बनता है, लिक्विड स्टेट में बनता है, तो उसका वॉल्यूम मेजर करना इजी होता है. कैन यू गेट इट? Yes. Ma'am. Like for Yes. example, I say sugar solution. Sugar is solid and you're dissolving it in water. Okay, did you follow this? Yes. ठीक है.
सो टेल मी यूनिट्स क्या होंगे यहाँ पर? ग्राम पर ml, kg per liter, Yes. isn't it? ठीक है, डिड यू फॉलो? Yes. यस तो मैम देखो अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन जो है वो वैसे क्या होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। बट डिडंट यू स्टडी इन योर अर्लियर क्लासेस कि व्हेन यू ऐड शुगर इन वाटर डज द लेवल ऑफ वाटर राइजेस? No. No, ma'am. No, ma'am. To extent. Because the sugar gets dissolved. Dissolved means what? It occupies the empty volume. It occupies the empty volume, that is the intermolecular spaces. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. तो जब तक किसी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड ना हो, ओके, तो जनरली व्हाट डू वी से इज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, Yes, ma'am. ठीक है, फाइन। और अगर बाय चांस सॉल्वेंट इज नॉट गिवन तो वी विल ट्रीट इट एज व्हाट? What? So when the solvent is water, it is called as aqueous solution. Aqueous solution. ठीक है? So because water is a universal solvent, water is a universal solvent. We call it as a universal solvent because it has a capacity to dissolve lots and lots of things. So we call it as a universal solvent. But अगर supposing question में solvent not specified, तो तुम किसको ले सकते हो? Water. Yes. If solvent is not specified, you can use it as water. And you know, अगर कभी तुम्हें density की जरूरत पड़े और वो water aqueous solution हो, तो density can also be taken as, what is the density of 1 water? gram per ml. Yes, for water. These are all the techniques which you may need require, which may be required while solving the questions. Can you get it this much? यस मैम ठीक है, अब आते हैं नए चीजों के ऊपर। तो जैसे परसेंट था वैसे ही होता है पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। वो था परसेंट पर मिलियन, इसको हम लोग यूज करते हैं एज पीपीएम। तो ये क्या होता है, जैसे इट इज नथिंग बट यू नो 1 मिलियन स्टैंड्स फॉर 10 raised to the power 6, you know that. सो नाउ क्या है, पर मिलियन का परसेंट का मतलब था हम किससे मल्टीप्लाई करते थे? 100. 100 से। तो पर मिलियन में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 to the 10 to the power power 6. यस। सिमिलरली यू मे हैव पी पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन मतलब कैसे लिखेंगे? पीपीबी। तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी अगेन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। और बिलियन में कितने होते हैं? 10 to the power 9. 9 तो ये तब यूज किया जाता है जब हमें इवन माइन्यूट अमाउंट इज वेरी हार्मफुल। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4 into 10 raised to the power -4%, इट इज वेरी इजी टू राइट 40 ppm। देखो कौन ज्यादा बेटर साउंड कर रहा है, 0.00004% या 40 ppm? 40 ppm. Yes, so that's why we are used. So these quantities are used when there is very small amount of solute. जनरली ये कब यूज किया जाता है? पॉल्यूटेंट्स के लिए, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स का स्मॉल अमाउंट भी हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तो ये पीपीएम एंड पीपीबी तभी जनरली यूज किया जाता है जब पॉल्यूटेंट्स। यू माइट हैव सीन इन न्यूज एंड ऑल एवरीथिंग आल्सो कि आर्सेनिक का कंटेंट इतना पीपीएम हो गया। परसेंट नहीं लिखते हैं वो लोग, पीपीएम लिखते हैं। ओके, क्लोरीन को ऐड किया जाता है ना प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में, तो किस में एक्सप्रेस करते हैं? पीपीएम में, क्योंकि हमें स्मॉल अमाउंट की जरूरत पड़ती है। Did you get this much? Yes, ma'am. All the things? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it fine till here? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन काम के ऊपर। तो जो हम ये देखो, इसके बहुत रेयरली क्वेश्चंस आते हैं, कम आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि परसेंटेज वगैरह 9th वाइन्थ पे पढ़ा दिया जाता है। अब हम आते हैं मेन अपने वाले के ऊपर, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल्स वाले कंसंट्रेशन टर्म पे आते हैं, मोल फ्रैक्शन पे। तो मोल फ्रैक्शन क्या करता है? बेसिकली जैसे अगर हमारे पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट अ बाइनरी
सॉल्यूशन। और इस बाइनरी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं A and B. So Na is representing supposing moles of component A and Nb is representing moles of component B. Moles of B. तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है? जैसे फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे एक केक था, उसको 10 पीसेस में काट दिया और तुमने एक पीस ले लिया, तो हाउ मच फ्रैक्शन डिड यू टेक? 1/10. 1/10। यही चीज है, इसी को ये हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर भी वही हमें बस फॉलो करना है, इट इज मोल फ्रैक्शन। ओके, तो जैसे अगर मुझे लिखना हो कि व्हाट आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द कंपोजिशन, तो हाउ विल वी राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए? इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय अ ग्रीक सिंबल जीटा। यू नो अल्फा बीटा गामा आर ग्रीक सिंबल्स ABC। Yes. एक जीटा भी एक सिंबल होता है, कुछ एक्स की तरह होता है, ठीक है, देखने में थोड़ा सा एक्स की तरह होता है। तो इट विल बी व्हाट? मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और यू कैन से Na अपॉन Na plus Nb. Do you agree? Do you Yes. agree? Similarly, what will Yes, be mole ma'am. fraction of B? What will be mole fraction of B? Nb upon Na plus Nb. Yes. Yes, So ma'am. now see yourself, if I add both of them, mole fraction of A and mole fraction of B, तो क्या बनेगा? अगर सारे fractions को add कर देते हो, so what is the sum? 1. So for a 1. binary mixture, can I say mole fraction of A and mole fraction of B will be 1? Yes. ठीक है, this is valid for a binary mixture. Not always. दो कंपोनेंट हुए तो वैलिड होगा। अगर सपोजिंग 3 कंपोनेंट्स हो गए, सपोजिंग ना, ऐसा है नहीं, बट अगर 3 कंपोनेंट्स हो गए तो 3 कंपोनेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा? हाउ विल यू राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए? सो इट विल बी Na plus Nb plus Nc, ऐसे लिखोगे। Yes. Yes, ma'am. मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे लिखोगे? दिस NB upon Na plus NB plus NC. yes Nc, and then ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कैसे लिखेंगे? दिस Na plus Nb plus Nc लिखोगे। Yes. So if I tell you mole fraction of A plus mole fraction of B plus mole fraction of C, तो क्या करोगे? 1. 1. Can you see 1. yourself? So sum of all the mole fractions of all the components will equal to 1. Can you follow? Can you get it? Yes. What will be the units? No unit. No unit. ठीक है, moles upon moles, no units. Is it fine? Yes. Yes, ma'am. ठीक है, फिर एक और सबसे ज्यादा पॉपुलर यूज होने वाला कंसंट्रेशन टर्म इन केमिस्ट्री इज मोलैरिटी, कैपिटल M. ओके, सबसे पॉपुलर। ओके, सो दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंसंट्रेशन टर्म। मतलब अगर क्वेश्चन में ये लिखा आ जाए ना, द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 2, दैट मींस उन्होंने इनडायरेक्टली तुमको बोला है मोलैरिटी इज 2। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन टर्म स्पेसिफाई नहीं किया है तो इट हैज टू बी व्हिच कंसंट्रेशन टर्म? Polarity. यस, ठीक है, पूरी केमिस्ट्री में तुम देखोगे सबसे ज्यादा मोलैरिटी यूज होती है कंसंट्रेशन टर्म। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्टिव मास, आल्सो called as active mass. Okay, and it is also represented by square brackets. It is represented by square bracket. Like अगर ऐसे कहीं लिखा आ गया square bracket or HCl, that is representing molarity of HCl, of HCl solution. Do you follow this? Yes. Now what is molarity? So it is moles of solute dissolved in per liter of solution, dissolved in per liter of your solution. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा मोलैरिटी का?
मोल्स निकालना तो अपने को आता है ना, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और ये किस में होनी चाहिए, Liter. liters. By chance, if supposing your volume is in ml, supposing if it happens to be in ml, then what will you do it? Supposing तो क्या कर देंगे, अगर वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन मुझे लीटर्स में नहीं मिली, ml में मिली, तो हम क्या करेंगे, उसे कैसे कन्वर्ट करें लीटर्स में, by multiplying it by 1000. check it. Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो इसका एक और एडवांटेज या फिर एक और यूज देखो, मोलारिटी का एक और यूज देखो, तो टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, टेल मी. वेट अपॉन मोलर मास. Given mass. यस, यू हैव डन दिस, gm अपॉन mm. ये कब यूज करते हैं, जब हमें वेट दिया हो ग्राम्स में, तभी यूज करते हैं ना. Yes, ma'am. ठीक है, फिर एक और पढ़ा था हम लोगों ने फॉर्मूला, दैट इज नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर. ये कब Yes. यूज करते थे, जब हमें नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स गिवन होते हैं. फिर एक और पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स एट एसटीपी, ये भी पढ़ा था. Yes. Yes, ma'am. अब देखो एक चौथा फॉर्मूला भी बनता है, चौथा फॉर्मूला क्या बनता है, देखो अगर मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे तो मोल्स आ जाएंगे. Yes. तो Yes, अगर ma'am. क्वेश्चन में तुमको यूज करना है और मोलारिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो यू कैन से दिस कैन आल्सो बी यूज्ड टू कैलकुलेट द मोल्स, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम. लेकिन ध्यान क्या रखना है, वॉल्यूम शुड बी इन volume Liters. should, In liters. consider the fourth formula also to calculate the number of moles. Did you get the fourth formula also to calculate number of moles? Yes. Yes, ma'am. Okay. Now see क्या होता है, एक मिनट, just a minute, let me complete with this. One minute, where were we? चलो शेयर करते हैं पहले. Check it, is it visible now? Yes, Is it ma'am. visible Yes, now? Yes, ma'am. ठीक है, सो अभी इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, तो आगे कंटिन्यू करते हैं तो फिर जैसे फॉर एग्जाम, हाँ मैं क्या बताने वाली थी तुम्हें यहाँ पर, जैसे अगर मुझे लिखा हुआ आ जाए वन मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज व्हाट 1 m, और 1 नहीं लिखा जाता है, इट इज सिंपल m. डिड यू गेट इट, 1 मोलर, सॉरी नॉट मोलर. Please pardon that. One, if there is a question, it is written molar solution. It stands for molarity is 1. Molarity of the solution is 1. Now is it fine? ठीक है, ऐसे ही अगर लिख के दे दिया जाए डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसी मतलब क्या होता है, m by 10, or you can say molarity is 1 by 10. Did you follow now? Did you Yes. follow? कभी कभी वो ऐसे भी लिख देते हैं सेमी मोलर solution. Semi matlab half. So it is how much, m by 2. Okay, or you can say molarity is 1 by 2. Did you follow now? yes ma'am. Yes. एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे, calculate the molarity of the solution which contains 49 grams of sulfuric acid which is dissolved in 500 ml of solution. Try करो. I'm one.
Okay, how did we do? Molarity is equal to moles of solute. तो moles of solute 49 into 9 divided by 98 होगा कि नहीं? Yes, ma'am. 0.5 And moles. then because this is an ml, I'll have to multiply above by 1000. अगर लीटर में होता तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा. Yes, ma'am. So this is how much? 1. So which type of solution is it? Molar solution? Yes, ma'am. Did you forget it? Yes. Okay. Now again do it. Supposing I give you, calculate the molarity of, or can write, I'm doing like this. What weight of NaOH should be added? To 200 ml of solution to produce semi-molar solution. Try karo. Ma'am, 4. Yes, again, what is the formula to calculate molarity? It is weight in grams divided by molecular weight into volume. If it is in ml, we will multiply it by 1000. अब देखो सिर्फ values put करने रह गई. Semi molar means molarity half होनी चाहिए. Weight calculate करना है. Molecular weight कितना होता है? 40 और ये 200 है और ये 1000 है. तो देखो तुम्हारे पास सिर्फ solve करने को रह गया. What should be the weight of NaOH? What should be the weight of NaOH? Tell 40. me. Ma'am, 4. Did you follow? Yes. ठीक है. तो अब देखो तुम्हारे को ना यहाँ कंसंट्रेशन टर्म्स में 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं. एक तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे कि मोलारिटी दे दी जाएगी, पूछ लिया जाएगा बताओ क्या वॉल्यूम है. मोलारिटी दे दी जाएगी, वॉल्यूम दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा बताओ क्या वेट होना चाहिए. मतलब इस टाइप के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे. एक क्वेश्चन क्या आएंगे जिसमें तुम्हें बोला जाएगा मोलारिटी को वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इनमें कन्वर्ट करो, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. फिर थर्ड वैरायटी के क्वेश्चन क्या आएंगे जिसमें हम लोग 2 सॉल्यूशन लेंगे, उनको मिक्स कर देंगे और बोला जाएगा बताओ नई मोलारिटी क्या आ रही है. या फिर हम उसमें वाटर डाल देंगे, डाइल्यूशन कर देंगे और हम बोलेंगे थर्ड मतलब क्वेश्चन क्या. तो यहाँ पे 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस बनेंगे. हम लोग अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है, तो सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीजों पे मैंने तुम्हें बताया है. इज इट फाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब क्या करना है, तुम्हारी जो भी स्कूल बुक है पहले उसको फॉलो करना. उसमें जहाँ कंसंट्रेशन टर्म्स दिए हुए हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उनको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, देखना आर यू एबल टू फॉलो देम. ठीक है. फिर तुम क्या कर सकते हो, अपनी मॉड्यूल में देखना है इस टाइप के क्वेश्चन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जिसमें सिर्फ मोलारिटी, वेट या फिर वॉल्यूम पूछा गया हो, वो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना. मिक्सिंग, डाइल्यूशन और वेट बाय वेट को किसी में कन्वर्ट करना, वो वाले क्वेश्चंस आपको अभी नहीं टच करने हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कन्वर्ट करेंगे. इज इट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है. फिर चौथा इसका यूज होता है स्टोइकियोमेट्री में भी, वो भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी नहीं करेंगे. ओके. तो अभी सिर्फ हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स का इंट्रोडक्शन किया है. बट होमवर्क क्या है तुम्हारे लिए, जितने भी स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ओके, कहीं से भी मिले